whenever you call some member function, you use object and dot operator and name of the method, right? Whatever method you want to call, you use the name of the object and method of some class, you know? So it is known at the compile time that which method will be called. This binding is clear at compile time. This type of binding is static binding. When it is clear that which method will be invoked after this statement. But what's happening in inheritance? Suppose a base class has some method, okay? And then there is a derived class. And this derived class also has a method with the same name. Now, in this case, if you are creating an object of this derived class and you are writing d.show, now which method will be invoked? By default, it will give priority to this method. If you want to invoke the base class method, you are going to write d.base. You will write like this. We start providing the scope resolution. But these things become cumbersome if your code size is very big. Okay, this is very big. Actually, what we want is कि हमारे पास कोई एक base class हो, उसके बाद हम इसमें से जितनी भी derived classes निकालेंगे, why not to create some base class pointer, and why not to use this base class pointer to access all the methods and members of the derived classes? Why not to use just one pointer variable of base class type to access members of other class types? So this is doable in C++. We will see how. Okay, don't get panic. Ki kya ho gaya? I'll show you with this code. Okay. So I think you are able to see this code, right? बेटे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत प्यार से और अच्छे से समझना है. And you will learn only if you just go and revise it. If you just simply listen and then shut your systems down, then it is of no use. So the first topic that we are discussing today is pointers to derived class. Why I'm taking this topic? Because we want to understand what is runtime. So for understanding runtime polymorphism, we must understand the concept of pointers to derived classes. Now here in this example, I have taken a class base. And if you clearly see, base class के अंदर, yes, एक integer b है और एक show नाम का method है जो display कर रहा है, ठीक है? जो एक cout statement में b की value को दिखाता है. That's it. इसमें और कुछ नहीं है. उसके बाद मैंने एक और class बनाई है derived class. Derived class में there is one, everything is public. You see यहाँ पे सिर्फ public members ही हैं, base में भी और derived class में भी. Now this derived class has inherited base class in public mode. यहाँ पे ड्राइव क्लास के अपने मेंबर्स कौन से हैं बेटे? ये वाले जो मेंबर्स हैं, इंटीजर डी एंड दिस शो मेथड, ये ड्राइव क्लास के खुद के अपने पर्सनल मेथड्स हैं. बट इसने बेस क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिट किया है, तो इसके पास, मैं कमेंट्स में लिख देती हूँ, इसके पास ये वाली चीजें भी असेसिबल हैं. इतना तो आपको याद होगा. यस, you can call these base class members by creating objects of derived class. क्यों? क्योंकि derived class ने base class को publicly inherit किया है. इतना आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो कि यहाँ तक आपको समझ में आती हैं चीजें, या ये याद है या ये नहीं याद है. Just be quick. Yes, please write in chat box that do you remember this thing or not? That what is the meaning of this statement and what this statement implies. This statement implies that whatever belongs to derived class is there, but whatever was the public part of this base class is now again the public member of derived class because we have inherited in the public mode. Okay. Now what's happening in main? Okay. Now driver program, ये देखने में इतना बड़ा है, बहुत ज्यादा आसान है ये टॉपिक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है. मेन प्रोग्राम में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है. यहाँ क्या क्रिएट हुआ है बेटे? यस, पॉइंटर टू बेस क्लास ऑब्जेक्ट है ना. ये हमें सबको समझ में आता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लिया.
और बेस क्लास का जो मैंने पॉइंटर बनाया उसके अंदर मैंने उस ऑब्जेक्ट का क्या डाल दिया, एड्रेस डाल दिया. नाउ द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज कंप्लीट. किसका इनिशियलाइजेशन? बेस क्लास पॉइंटर का. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है. उसके बाद मैंने इस पॉइंटर की हेल्प से मैंने बी को एक्सेस किया. बी को एक्सेस करने का दूसरा तरीका क्या था, आप ये भी लिख सकते हो objb.b इज इक्वल टू 10. या तो आप ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हो, या अगर आपने पॉइंटर से एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे, पॉइंटर का नाम एंड एरो ऑपरेटर एंड नेम ऑफ द मेंबर दैट यू वांट टू एक्सेस. बट दिस वे एक्सेस इज ओनली पॉसिबल इफ द मेंबर इज पब्लिक मेंबर. यहाँ पे ये पूरी लाइन पॉसिबल इसलिए क्योंकि बी क्या है, पब्लिक मेंबर है. अगर ये प्राइवेट मेंबर होता तो इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए मुझे या तो कंस्ट्रक्टर रखना पड़ता या मुझे कोई मेथड क्रिएट करना पड़ता, गेट डेटा टाइप्स का कुछ मेथड बनाना पड़ता. ठीक है, उसके बाद मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखा. इस टाइम पे ये पॉइंटर की टाइप क्या है, इट्स टाइप इज बेस. ये बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ये इसकी टाइप है पॉइंटर की. इसके कंटेंट्स क्या है, इसके कंटेंट है इट इज पॉइंटिंग टू अ बेस क्लास ऑब्जेक्ट. इसमें किसी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है. दोनों चीजें, जो जो इसकी टाइप है वही इसके कंटेंट्स है, मैं ये कहना चाहती हूँ. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप शो मेथड को इन्वोक करोगे, ये शो मेथड कौन सा मेथड होगा बेटे, बेस क्लास वाला, बेस क्लास मेथड. ठीक है, नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन नेक्स्ट स्टेटमेंट. मैंने डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया. नाउ सी दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. मैंने डिराइव क्लास की ऑब्जेक्ट का एड्रेस किस में डाल दिया, बेस क्लास वाले पॉइंटर में डाल दिया. दिस इज अलाउड इन C++, बट इट इज ओनली अलाउड if a class is derived from another class. Means आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दूसरी क्लास के पॉइंटर वेरिएबल में डाल सकते हो ओनली व्हेन द क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीवियस क्लास. यहाँ पे हम BPTR के अंदर ये डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस इसलिए डाल पा रहे हैं क्योंकि ये वाली जो डिराइव्ड क्लास है ये एक्चुअली में डिराइव्ड क्लास है फ्रॉम दिस क्लास. ओके, so when you create derived classes, then you can create base class pointer, and to the base class pointer you can assign address of the object of a derived class. ठीक है, बट एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट का ही एड्रेस असाइन कर सकते हो. ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते BPTR++, मतलब पॉइंटर अर्थमेटिक इज नॉट अलाउड. ओके, पॉइंटर अर्थमेटिक अलाउड नहीं होगा इसके ऊपर. बट नाउ व्हाट यू कैन डू इज आप बेस क्लास के पॉइंटर में डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल दो. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं. C++ permits a base class pointer to point to any object derived from the base class, but it cannot be used to access all members of derived class. ये मैं आपको बताऊंगी ये क्या चीज है. ठीक है, अब देखो पॉइंटर की टाइप क्या है बेटे, पॉइंटर की टाइप है ये बेस क्लास टाइप का पॉइंटर है, बट इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसके कंटेंट्स में एड्रेस है उस ऑब्जेक्ट का जिसकी टाइप क्या है, डिराइव्ड. So type and content are not matching. So if I'm writing this statement BPTR arrow B, now what was B? B किसका member था बेटे, if you remember? B base class का public member था. Now I'm assigning it value 40. It is okay. Now I'm showing this value. यहाँ पे कौन सा show method call होगा, यहाँ पे जो show method call होगा, यहाँ पे ये जो show method call होगा ये बेस वाला ही कॉल होगा, ये वाला. ओके, ये बेस वाला ही कॉल होगा. क्यों, कंपाइलर इग्नोर्स द कंटेंट्स ऑफ द पॉइंटर and it executes the member function that match the type of the pointer. बेटे अगर इसको सिंपल भाषा में समझना है तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस तो डाल सकते हो, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस तो डाल सकते हो, बट इस पॉइंटर से आप सिर्फ वही मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो जिनको आपने इनहेरिट किया है बेस क्लास से. जो ड्राइव क्लास के खुद के पर्सनल होंगे ना मेंबर्स या मेंबर्स, उनको आप इस पॉइंटर से एक्सेस नहीं कर सकते. ड्राइव क्लास का अपना खुद का क्या था, इसका खुद का अपना था एक तो इंटीजर D और इसका एक अपना शो मेथड था जिसमें कि 2 स्टेटमेंट्स थे, 2 सी आउट थे. ठीक है, और इसने जो इनहेरिट किया था वो क्या था, B एंड शो. ये दोनों बेस क्लास के थे. अब इस स्टेटमेंट के बाद
आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, बट ये स्टेटमेंट में कौन सा शो मेथड इन्वोक होगा? बेस क्लास वाला। डिराइव क्लास के मेंबर्स को आप इस पॉइंटर से एक्सेस नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। फिर आप कहोगे कि इसका फायदा क्या हुआ? जब हम ये पॉइंटर के अंदर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल रहे हैं, लेकिन एक्सेस अभी भी सिर्फ बेस क्लास वाली चीजों को ही कर पा रहे हैं, फिर इसका फायदा क्या हुआ? वो हम बाद में देखेंगे इसका क्या फायदा है। ओके, नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस द members that belong to derived class, how you can do? या तो आप बेस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करोगे, है ना, या तो आप ऑब्जेक्ट ऐसे लिखोगे objd.d लिखोगे, या लिखोगे objd.show, या फिर आप ड्राइव क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट करोगे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस डालोगे, फिर पॉइंटर से एक्सेस करोगे। ये दोनों स्टेटमेंट्स किसके लिए चलेंगी? जो ड्राइव क्लास के खुद के मेथड्स हैं। ठीक है, ये समझ आया आपको जो भी बताया? राइट इन चैट बॉक्स यस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आपको साथ साथ समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहा। आई विल डिस्कस दिस ऑल्सो। जो लास्ट तरीका है वो क्या है कि आपने जो ये बेस क्लास का पॉइंटर बनाया था, इसके आप इसमें आपने डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल दिया ना, आप इसको टाइप कास्ट कर सकते हो, आप इसको टाइप कास्ट कर सकते हो, तब ये ड्राइव क्लास के पॉइंटर की तरह वर्क करेगा। तो ये स्टेटमेंट अदरवाइज तो चलेगा नहीं। अगर आप इसके आगे ऐसे टाइप कास्ट लगा दोगे देन दिस स्टेटमेंट विल वर्क फाइन। अब यहाँ पे ये चलेगा। और इस स्टेटमेंट के बाद कौन सा शो मेथड इन्वोक होगा? जो डिराइव्ड क्लास वाला है। अगर आप नॉर्मली लिखोगे bptr arrow show, so what matters is the type of pointer. It doesn't matter that what are the contents of the pointer. एक चीज अपने दिमाग में आप अच्छे से फिट कर सकते हो एक स्टेटमेंट कि when you are creating a base class pointer and assigning the address of a derived class object to that base class pointer, ठीक है, now the type and the contents of pointer are different. Type and content both are different. टाइप कौन सी है? बेस क्लास है। अब मैं बार बार ये स्टेटमेंट्स रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आई वांट यू टू क्रैम दिस थिंग। इस केस में टाइप पॉइंटर की क्या है? बेस क्लास की है, लेकिन कंटेंट किसकी है? डिराइव क्लास वाले हैं। तो अगर आप ऐसे पॉइंटर को यूज कर रहे हो डिराइव क्लास के मेथड्स या डिराइव क्लास के मेंबर्स को इन्वोक करने के लिए, तो ये नहीं चलेगा। जब आप बेस क्लास के पॉइंटर को यूज करते हो मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, दोनों की टाइप क्या होनी चाहिए? मैच। बेस क्लास का पॉइंटर बेस क्लास के मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, बेस क्लास का पॉइंटर बेस क्लास के मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते ऐसे। वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा, या आपको ये तरीके तो हमें आते ही हैं, ये तो स्टैंडर्ड तरीके हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीके। क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर? यस। बट हम ये चाहते नहीं, फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कोई बेनिफिट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भाई हम एक क्लास में से जितनी मर्जी ड्राइव क्लासेस निकालते रहें, उसके बाद मैं बेस पॉइंटर के अंदर ना अलग अलग डिराइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को डालती रहूं, और डिराइव क्लास के मेंबर्स को या मेथड्स को मैं क्या करती रहूं? कॉल करती रहूं। मुझे ऐसा चाहिए कि मैं ये कर पाऊं, ये स्टेटमेंट मैं कर पाऊं, या अगर ये स्टेटमेंट लिखूं आफ्टर दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या शो करे मुझे? डिराइव क्लास वाला मेथड शो करे, बेस क्लास वाला ना करे। मतलब कंटेंट की क्या होनी चाहिए? वैल्यू होनी चाहिए। इट शुड बिहेव एज पर द कंटेंट, इट शुड नॉट बिहेव एज पर द टाइप। मैं ये करना चाह रही हूँ, बट अभी नॉर्मल तरीके में इट इज नॉट अलाउड। इसका एक सोल्यूशन है। ये समझ आ गया कोड ये वाला? यस, राइट इन चैट बॉक्स। If you want me to repeat any of the portion, please tell. Otherwise, I'll move to the virtual part. Virtual keyword पे चला जाएगा lecture. Yes. अभी तक हमने ये सीखा है कि पॉइंटर की टाइप मैटर कर रही है। जिस टाइप का पॉइंटर है वो उस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड इन्वोक होगा। अब यहाँ पे शो मेथड का नाम सेम है, बेस क्लास में भी वही है और डिराइव क्लास में भी वही है। इन्वोक कौन सा होगा ये डिपेंड करता है पॉइंटर की टाइप पे। कंटेंट क्या है उसके अंदर ये मैटर नहीं कर रही। यहाँ कंटेंट किसके थे?
यहाँ कंटेंट ड्राइव क्लास के थे, बट इस स्टेटमेंट के बाद कौन सा इन्वोक होगा? बेस क्लास वाला ही इन्वोक होगा, ड्राइव क्लास वाला नहीं होगा. इट इग्नोर्स द contents that are pointed by the base class pointer. What matters is the type of pointer. इसको एक बार रन करके भी दिखा देती हूँ. तो इस ये चलता है, तो तब तक हम इसका आउटपुट भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं. जैसे इसका आउटपुट आएगा, पहले ये वाली लाइन प्रिंट होगी. ये शो मेथड में क्या था? आई थिंक बी की वैल्यू दिखा रहा था वो. ठीक है, ये we just confirm it side by side. सबसे पहले ये स्टेटमेंट आई बेटे, फिर ये मेथड रन हुआ. ये कौन सा रन हुआ? बेस क्लास वाला. अब हमने बेस क्लास के पॉइंटर में डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल तो दिया, ठीक है, लेकिन ये इस स्टेटमेंट के बाद ये स्टेटमेंट हमने सी आउट लगाई, ये आ गया. शो मेथड रन हुआ. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्राइव क्लास वाला रन होगा. कैसे पता चलेगा ड्राइव क्लास वाला नहीं हुआ? इसमें दो सी आउट्स थे, ये दोनों रन नहीं हुए. कौन सा रन हुआ है? इस स्टेटमेंट के बाद बेस क्लास वाला ही रन हुआ है. ठीक है, तो अगर हमें ड्राइव क्लास के मेथड्स को असेस करना है, ये तो ट्रिवियल मेथड्स हैं, ये ट्रिवियल मेथड्स हैं बेटे. ये नई चीज है कि आप ड्राइव क्लास के बेस क्लास के पॉइंटर को टाइप कास्ट कर सकते हो. लास्ट वाला केस देखो, टाइप कास्ट करने के बाद, यस, टाइप कास्ट करने के बाद ये जो शो मेथड रन हुआ है, ये कौन सा रन हुआ है? ड्राइव क्लास वाला. ये मैं आज जो भी काम करा रही हूँ आपको, मैं सेव कर लूंगी एक डॉक्यूमेंट में, सारे प्रोग्राम्स भी, एंड आई विल शेयर इट विद यू. ओके, डोंट वरी. सो डोंट बॉदर टू राइट एंड, है ना, एग्जीक्यूट. जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. नहीं समझ में आता तो अब हम ये सीखना चाह रहे हैं कि भाई ये होगा कैसे. हम ये नहीं चाहते कि बेस क्लास का पॉइंटर बनाएं, उसके बाद काम वो सिर्फ बेस क्लास के लिए ही करे, ड्राइव क्लास का कोई काम ही ना करे, फिर फायदा ही क्या हुआ. तो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, उसके लिए देयर इज अ सोल्यूशन. वो सोल्यूशन क्या है? वर्चुअल फंक्शन. वो क्या सोल्यूशन है बेटे? वर्चुअल फंक्शन. कौन से फंक्शन को वर्चुअल बनाना है? आपने एक ऐसे फंक्शन को वर्चुअल बनाना है जिसका की नाम सेम है बेस क्लास में भी. वही, जैसे डायरेक्टली कोड पे जाएंगे पहले, बाद में आई विल टेल यू द थ्योरी. 46 47 लाइन, जस्ट वेट बेटे. बेटे ये बेस क्लास पॉइंटर है BPTR, लेकिन अभी इसके अंदर कंटेंट क्या है? इसके अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस है जो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है. तो अगर आप इसको बेस क्लास का कोई भी पॉइंटर, चाहे आप उसमें ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल दो, आप उसको यूज नहीं कर सकते ड्राइव क्लास के पर्सनल मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए. उसका सोल्यूशन क्या है? आप उसको टाइप कास्ट करो. गॉट इट ऋतिक? कौन सा मेथड इन्वोक होगा using pointer? It depends upon the type of the pointer. It does not depends on the content of the pointer here when you have inherited. Okay, got it? Let me just check. Okay, वर्चुअल फंक्शन क्या है कहानी सी बाद में पढ़ेंगे, पहले कोड समझते हैं थोड़ा सा. यहाँ पे एक बेस क्लास नाम की क्लास है, इसमें एक डिस्प्ले मेथड है, एंड इफ यू सी यहाँ पे शो मेथड है. ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल सी आउट्स हैं. ये डिस्प्ले बेस का है, ये शो बेस का है. ठीक है, फिलहाल इसके अंदर मैंने ये कुछ नहीं लगाया हुआ. ठीक है, सिंपल एक डिराइव क्लास बनाई, उसने बेस क्लास को पब्लिक इनहेरिट किया. फिर उसके बाद डिराइव क्लास के अंदर भी सेम नाम के मेथड्स हैं, डिस्प्ले और शो. भाई ये जो डिस्प्ले और शो है ये डिराइव क्लास के हैं, लेकिन अब इसके पास ये दो भी आ गए. ये दो कहाँ से आए? बेस क्लास से आ गए. एक तरीके से इसके पास दो डिस्प्ले हो गए, दो शो हो गए. क्लियर? अब हम ड्राइवर प्रोग्राम पे आते हैं. ड्राइवर प्रोग्राम में मैंने क्या किया? बेस का ऑब्जेक्ट बनाया, ड्राइव का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया. बेस क्लास के पॉइंटर में मैंने बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का ही एड्रेस डाला है. तो अगर मैं पॉइंटर से एक्सेस करूंगी इन दोनों मेथड्स को, यहाँ पे किसके ये कौन से डिस्प्ले एंड शो इन्वोक होंगे बेटे? ये बेस क्लास वाले इन्वोक होंगे. क्यों? क्योंकि बेस क्लास का पॉइंटर है और उसमें एड्रेस भी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का ही है. बट नाउ व्हाट आई हैव डन इज,
बेस क्लास के पॉइंटर में मैंने डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल दिया, फिर मैंने मेथड्स कॉल किए डिस्प्ले एंड शो, बट नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल अगेन कॉल द डिस्प्ले एंड शो मेथड्स ऑफ यस बेस क्लास, क्योंकि चाहे आप इसके अंदर एड्रेस चेंज कर दो, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का डाल दो, बट ये किसको कॉल करेगा, बेस क्लास वाले को ही कॉल करेगा, क्योंकि मेथड कॉल किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ द पॉइंटर पे, नॉट ऑन द कंटेंट्स। बट मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा हो, इसको एक बार रन करके दिखा देती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, दोनों बार डिस्प्ले बेस, ठीक है, समझ आया ये, राइट इन चैट बॉक्स, यस। मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, जब मैं बेस क्लास के पॉइंटर में डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल देती हूँ, तो उसके बाद ना बेस क्लास का पॉइंटर क्या करे, डिराइव क्लास के फंक्शंस को कॉल करे, ना कि बेस क्लास वाले, स्पेशली वो फंक्शंस जिनका नाम सेम है, ठीक है, जिनका नाम सेम है उनको नहीं। तो बेस क्लास के ऐसे मेथड्स को आप क्या बना सकते हो, वर्चुअल। अब इस केस में क्या होगा बेटे, अगर आपने ऐसे फंक्शन को वर्चुअल बना दिया जिसका नाम सेम है ड्राइव क्लास में भी और बेस क्लास में भी, पर बेस क्लास में आपने उस फंक्शन को क्या बना दिया, वर्चुअल बना दिया। अब इस केस में जब आप ये स्टेटमेंट इन्वोक करोगे, यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होगा, डिराइव क्लास वाला। स्पेलिंग्स इग्नोर कर देना, ओके। सो डिराइव क्लास वाला मेथड इन्वोक होगा। तो ये कितनी अच्छी चीज है, आप अपने कोड में एक बेस क्लास बना लो, फिर जितनी मर्जी ड्राइव क्लासेस बनाते रहो, और अगर आपके फंक्शंस का नाम सेम है तो आप बेस क्लास वाले फंक्शन को क्या क्रिएट कर दो, वर्चुअल बना दो। तो जब भी आप ये स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट्स यूज करोगे, वो कौन से मेथड को कॉल करेगा ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। सो दिस इज हाउ वी अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बट दिस कॉल इज नॉट, ये कंपाइल टाइम पे ये क्लैरिटी नहीं होती कि वर्चुअल कीवर्ड लिखने से भी क्लैरिटी नहीं होती यहाँ पे कंपाइल टाइम में कि कौन सा मेथड कॉल होगा। एक्चुअल में ये क्लैरिटी कब आती है, जब प्रोग्राम रन करता है। सो दिस इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस। इसको एक बार रन करते हैं। तो पहले तो हमें पता ही है बेस क्लास के पॉइंटर में किसका एड्रेस था बेटे, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का ही था। तो ये दोनों मेथड्स कौन से चलेंगे, बेस क्लास वाले, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल दिया, और हमने डिस्प्ले फंक्शन को क्या बना दिया बेटे, वर्चुअल। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बेस क्लास के पॉइंटर एरो ऑपरेटर डिस्प्ले फंक्शन, इट विल इन्वोक द डिराइव क्लास फंक्शन। लेकिन देखो बेस ये वाला मेथड, ये शो फंक्शन अभी भी आपका वही है, शो को आपने वर्चुअल नहीं बनाया बेस क्लास में, तो इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट किसको रन करेगा, बेस क्लास वाले को। अगर आप यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो दोनों को क्या बना दो, बेस क्लास में दोनों को क्या बना दो, वर्चुअल, ठीक है। हम यहाँ पर शो बेस क्यों आया यहाँ पर, हम यहाँ पर तो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट था। कहाँ पे शो बेस आया, मैंने थोड़ा चेंज किया है, कौन सी लाइन की बात करो बेटे, 91 लाइन में। टाइम। यहाँ पे बेटे शो बेस इसलिए आया था क्योंकि तब तक मैंने सिर्फ डिस्प्ले मेथड को वर्चुअल बनाया था, इसको नहीं बनाया था। अब यहाँ पे भी शो है, यहाँ पे भी शो है, तो अगर आप ये लिखोगे बेस पॉइंटर एरो ऑपरेटर शो, इन दिस केस इट विल ऑलवेज इन्वोक बेस क्लास मेथड, ओके। इट विल, कौन सा मेथड इन्वोक होगा मैं बार बार रिपीट करूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द पॉइंटर इन दिस केस। But when you place this keyword virtual in front of the function whose name is same, in this case the function call now depends upon the contents. अब derive class आएगा बेटे, got it? वर्चुअल लिखने के, देखो अब डिराइव क्लास आ गया। वर्चुअल कीवर्ड लिखने के बाद जो कंटेंट्स मैच कर रहे हैं, जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका मेथड इन्वोक होगा, ना कि टाइप ऑफ द पॉइंटर। गॉट मैम इट? मैम जब एड्रेस हम डिराइव का देते हैं तो वो क्यों नहीं शो होता, वर्चुअल लिखने सारा का बोला ना, रीजन क्या है?
जैसे हम एड्रेस अगर डिराइव का दे रहे हैं बी पॉइंटर में, तो मैम शो में वो क्यों होता है, मतलब बेस नहीं, क्लास वाला क्यों? ये बिहेवियर है लैंग्वेज का, मतलब कंपाइलर उसको इसी तरीके से रिजॉल्व करता है इसको। मतलब बेस क्लास का पॉइंटर लिखने से आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे बीपीटीआर लिखने से वो बेस क्लास वाला ही क्यों कॉल करता है, जबकि हमने कंटेंट चेंज कर दिए। यस मैम। वो मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि अगर आपके फंक्शन का नाम सेम है बेस क्लास में भी और डिराइव क्लास में, तो कंपाइलर ऐसे ही कोडेड है कि जो पॉइंटर की टाइप है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो मेथड इन्वोक करेगा, कंटेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं। वो टाइप के अकॉर्डिंग कॉल करता है बेटे। टाइप कौन सी है इसकी, ये तो वो कहेगा ये तो बेस टाइप का पॉइंटर है, तो ये डिस्प्ले मेथड भी मैं किसका इन्वोक करूंगा, बेस क्लास वाला ही इन्वोक करूंगा। ये एक प्रॉब्लम है, इसी को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या फैसिलिटी करी है इसमें, हमने वर्चुअल वर्चुअल ये वर्चुअल कीवर्ड है। अगर आप वर्चुअल डाल दोगे ऐसे फंक्शन नाम के सामने जो सेम है, तो कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा। अब वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो कंटेंट पे डिपेंड करेगा, ना कि टाइप पे। दैट इज वाई वी आर पुटिंग वर्चुअल टू मेक इट वेरी क्लियर कि कंटेंट पे देखो भाई, जो कंटेंट है उसका मेथड इन्वोक करो, ना कि टाइप का। नाउ क्लियर। यस मैम। अब देखो ये कितनी अच्छी चीज है, कितना आप अब इस ये आपको कितना अच्छा टॉपिक नहीं लग रहा। हमने बस एक बेस क्लास बनानी है। जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जितनी मर्जी ड्राइव क्लासेस बनाई जाओ, जितनी मर्जी ड्राइव क्लासेस बनाई जाओ, उसके बाद सिर्फ एक बेस क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट कर लो। and what you can use is you can use this pointer to call any method of the derived class। जो derived class के अपने हैं उनके लिए आप टाइप क्लास यूज कर लो, जो इनहेरिटेड हैं उनके और नाम सेम है उनके आगे आप वर्चुअल लगा दो, नाम सेम रख लो। मतलब यू कैन डिजाइन एप्लीकेशंस, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग इतनी चीजें लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बेस क्लास का पॉइंटर बना के यू कैन कीप ऑन कॉलिंग। है ना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट भी है, मजेदार भी है। यस। तो अभी हम ये थोड़ी सी इसकी स्टोरी भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। पता नहीं आपको ये कितना इंटरेस्टिंग लगता है। खुशी होनी चाहिए अंदर कि वाह यार कुछ, ये तो बहुत मजेदार चीज है। ऐसी फीलिंग नहीं आ रही आपको? बताओ चैट बॉक्स में, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही? अब कोई नहीं लिखेगा चैट बॉक्स में कुछ भी। Okay. So what exactly it means to be virtual? When a function is made virtual, C++ determines that which function to use at runtime based upon the type of the object pointed by the base pointer rather than the type of the pointer. Okay? अभी मैंने भी ये रिपीट किया कि जब आप वर्चुअल बना देते हो, वर्चुअल बनाने के बाद कंपाइलर कैसे कॉल करता है रन टाइम पे, वो ये देखता है कि ऑब्जेक्ट की क्या टाइप है। ऑब्जेक्ट की टाइप के बेसिस पे वो कॉल करेगा मेथड को, ना कि पॉइंटर की टाइप के बेस के ऊपर। अगर आप वर्चुअल नहीं बनाते हो तो पॉइंटर की टाइप जो है उसके बेसिस पे फंक्शन कॉल होगा। समझ गए? उसके बाद हियर आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट दिस इज नॉट फंक्शन। अब किसी को लग रहा होगा ये फंक्शन ओवरलोडिंग है बेटे, ये फंक्शन ओवरलोडिंग तो नहीं है। आपको कि यहाँ पे भी ये फंक्शन है, वहां पे भी वही फंक्शन है, इट इज नॉट function overloading. Why? Let's read this point. The most important is that the prototype for a redefined virtual function must match exactly the prototype specified in the base class. इसका मतलब क्या हुआ इस कहानी का? मैं तो कंफ्यूज हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सपोज ये कोई डिस्प्ले फंक्शन है डिराइव क्लास का, और ये था डिस्प्ले फंक्शन बेस क्लास का। दिख रहा है आपको? ठीक है, ये दोनों फंक्शंस आप देख रहे हो बिल्कुल सेम है, प्रोटोटाइप सेम है, रिटर्न टाइप देख रहे हो आप, ये हेडर बिल्कुल सेम है दोनों का। ठीक है, हेडर दोनों का सेम है। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहे हो। दिस इज फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन का सिर्फ नाम सेम होता है, फंक्शन कॉल कौन सा होगा ये डिपेंड करता है हेडर किसका मैच करता है। जब आपने कॉल किया नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन में वो
केस नहीं है, यहाँ पे दोनों का हेडर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ओनली देन मेकिंग इट वर्चुअल विल वर्क। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख दो ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिराइव क्लास का कोई अलग डिस्प्ले फंक्शन है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये दोनों अलग हैं। इन दिस केस बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। नाउ दिस मेक्स सेंस, इसको आपने वर्चुअल बना दिया और इसको आपने वर्चुअल नहीं बनाया, ये डिराइव क्लास के है। नाउ यू कैन यूज बेस क्लास पॉइंटर वाला मेथड टू इन्वोक दिस डिस्प्ले फंक्शन। ओके, सो दिस इज डिफरेंट देन ओवरलोडिंग। ओके, ओवरलोडिंग में कंफ्यूज नहीं होना, ओवरलोडिंग का मतलब होता है फंक्शन का नाम सेम होता है, बाकी रिटर्न टाइप्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इन चीजों पे डिपेंड करता है फंक्शन कॉल। लेकिन यहाँ वर्चुअल फंक्शन के केस में फंक्शन कॉल किस चीज पे डिपेंड करता है, अगर आपने फंक्शन को वर्चुअल बना रखा है तो टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा रादर देन द टाइप ऑफ द पॉइंटर। लेकिन अगर आपने वर्चुअल नहीं बनाया है तो फंक्शन कॉल किस चीज पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ द पॉइंटर। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। गॉट इट? इज दिस क्लियर? I will share this complete document to you. It was not possible to cover so much of this syllabus like this. एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, ये एक और प्रोग्राम है बेटे, सेम चीज है बट प्रोग्राम एक और है। यहाँ तक कोई डाउट है बेटे तो बताओ, प्लीज स्पीक अप, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, अब ये कोड आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शेप नाम की क्लास है बेटे, इसमें पब्लिक हमने मेथड रखा, अभी इसको वर्चुअल नहीं करते। ठीक है, इसमें एक ही मेथड है ड्रॉ नाम का। आफ्टर दैट वी क्रिएट वन मोर क्लास रेक्टेंगल, जिसने की शेप क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिट किया, उसके अंदर भी एक मेथड है ड्रॉ। अब आप मुझे ये बताओ, ये वाला ड्रॉ मेथड किसका है? ये रेक्टेंगल क्लास का है। अब एक तरीके से इसके पास दो दो ड्रॉ मेथड आ गए, एक तो शेप से आ गया और एक इसका खुद का। गॉट इट? एक और क्लास बना ली हमने सर्कल, उसने भी शेप क्लास को पब्लिक इनहेरिट कर लिया, उसका उसके अंदर भी एक सेम फंक्शन था ड्रॉ। ड्राइवर प्रोग्राम में हमने क्या किया, ड्राइवर प्रोग्राम में मैंने बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट किया, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अगर मैं उसके बाद रेक्टेंगल क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो और सर्कल क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। ठीक है, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट पॉइंटर में बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का ही एड्रेस डाला है, तो यहाँ पे कौन सा, यस बेटे, कौन सा मेथड कॉल होगा? स्पीक अप, एनीवन? शेप क्लास वाला। कौन सा? शेप क्लास वाला है ना। अब मैंने बेस क्लास के पॉइंटर में रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल दिया, अब कौन सा कॉल होगा? शेप क्लास का शेप का ही कॉल होगा। शेप क्लास का क्यों कॉल होगा? क्योंकि फंक्शन कॉल किस चीज पे डिपेंड करता है, फंक्शन कॉल इस चीज पे डिपेंड करता है कि पॉइंटर की क्या टाइप है, until or unless you declare that particular method as virtual। ठीक है, यहाँ पे शेप क्लास का ही कॉल होगा। सिमिलरली आपने सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल दिया तो कौन सा कॉल होगा? शेप क्लास वाला ही कॉल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी मेथड को वर्चुअल नहीं बनाया। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, सब में ड्राइंग 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 आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये हर बार ये वाला मेथड कॉल कर रहा है, ये वाला। मैंने क्या किया, मैंने इसको वर्चुअल बना दिया। ठीक है, वर्चुअल बना दिया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जब आप बेस क्लास के पॉइंटर में कंटेंट्स चेंज करते हो, फंक्शन कॉल वो वाला हो जिसके साथ कंटेंट्स की टाइप मैच करे। अब यहाँ पे कौन सा कॉल होगा बेटे? रेक्टेंगल वाला। जब आपने सर्कल वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल दिया तो यहाँ कौन सा कॉल हो जाएगा? सर्कल वाला। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, समझ गए कि नहीं? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में।
टॉक टू मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. कुछ बताओ. कोई डंडे तो नहीं मार रही मैं, वहां आके डंडा वगैरह तो नहीं मार सकती हूँ. It's my job to handle your doubt and to tell you, but if you not ask, so I'll also feel कि भाई इनको तो आता है भगाओ, इनको तो आता है भगाओ. So just ask. It's your duty to ask, बेटे. No one, all of you. There are 27 people in class. All right, yes ma'am, it's all clear. या सिर्फ yes लिख दो. I'm waiting. Don't waste time. Just take a minute to do this. ठीक है. तो अब हमें ये समझ में बस 2-3 लोगों को ही आया अभी. I'm waiting. I'm speaking, but I'm looking in chat box also. तो हमने यहाँ पे नई चीज सीखी है कि आप पॉइंटर. पहला चीज हमने क्या सीखा अभी तक, हम पॉइंटर बना सकते हैं बेस क्लास का और उसके अंदर हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल सकते हैं. दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि अगर आप ऐसे पॉइंटर बेस क्लास के पॉइंटर में डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डालते हो, उससे हम सिर्फ वो वाले मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं जो बेस क्लास से इनहेरिट हुए हैं. डिराइव क्लास के मेथड्स को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते बेस क्लास के पॉइंटर के साथ. या तो आप टाइप कास्ट यूज करोगे. ठीक है. आपको ड्राइव क्लास के जो पर्सनल मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर सर्कल क्लास है, इसमें कोई इंट i इज इक्वल टू 10 पड़ा है, तो आप इसको ऐसे ये नहीं लिख सकते. इट इज नॉट अलाउड. पर्सनल जो इसके अपने हैं उनको नहीं आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. उनको आप सिर्फ या तो आप इसको टाइप कास्ट करो. ये हमने दूसरी चीज सीखी. नाउ इट विल वर्क फाइन. क्या हो गया? ठीक है. राइट. तीसरी चीज हमने क्या सीखी कि अगर फंक्शन का नाम है जो सेम है बेस क्लास में भी और डिराइव क्लास में भी, चाहे आप पॉइंटर के कंटेंट चेंज कर दो लेकिन मेथड बेस क्लास वाला ही कॉल होगा. क्यों? क्योंकि वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? टाइप ऑफ पॉइंटर पे. टाइप ऑफ पॉइंटर पे. लेकिन इसका एक सोल्यूशन है. हम ऐसे फंक्शन को जिसका नाम सेम है उसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? वर्चुअल कीवर्ड लिख सकते हैं. वर्चुअल लिखने के बाद हम अपने प्रोग्राम में अगर पॉइंटर के कंटेंट चेंज कर रहे हैं तो मेथड कौन सा कॉल होगा ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये टाइप ऑफ द कंटेंट पे डिपेंड करेगा, ना कि टाइप ऑफ पॉइंटर पे. तो दिस इज हाउ वी अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. और ये क्लैरिटी कब आती है बेटे? ये वाली इस स्टेटमेंट में कि ड्रॉ मेथड कौन सा कॉल होगा, ये क्लैरिटी कब आती है? रन टाइम पे आती है. तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. वन नेम एंड मेनी फॉर्म्स. कौन सी फॉर्म रन करेगी? इट डिपेंड्स ऑन रन टाइम. ठीक है. ये हमने सीखा. उसके बाद प्योर वर्चुअल फंक्शंस. ये छोटे छोटे ही टॉपिक्स हैं बट आप करके देखो प्लीज इनको. नेक्स्ट टॉपिक आता है प्योर वर्चुअल फंक्शंस. प्योर वर्चुअल फंक्शन. अच्छा, प्योर वर्चुअल फंक्शन. ठीक है. जस्ट वेट. A pure virtual function is a function which is declared in base class. पहली बात तो प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है? एक वर्चुअल फंक्शन है. एक वर्चुअल फंक्शन को ही आप प्योर बना सकते हो. अगर आपको एग्जांपल देखे हो, यहाँ एक बेस क्लास है, एक डिराइव क्लास है, दोनों में शो मेथड है. दोनों में शो मेथड है. ठीक है. लेकिन हमने बेस क्लास वाले मेथड को क्या बना रखा है? वर्चुअल बना रखा है. आप इस वर्चुअल मेथड को प्योर बना सकते हो. कैसे प्योर बनाते हैं? इज इक्वल टू 0 कर दो एंड सेमीकोलन डाल दो. सेमीकोलन डालने का मतलब किसी फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर करना है. ठीक है. तो अब ये लाइन का मतलब हमें समझ में आ गया कि प्योर वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम बेस क्लास में क्या करते हैं? सिर्फ डिक्लेयर करते हैं. डिफाइन कहाँ करते हैं बेटे? डिफाइन कहाँ करेंगे? या तो डिराइव क्लास में डिफाइन करेंगे. ठीक है. ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसको डिराइव क्लास में डिफाइन करो. ओके.
So you just have to learn this thing that pure virtual function is a function which is declared in base class, but it has no definition relative to base class. No definition. अगर आपने ऐसा फंक्शन बना रखा है जिसको आपने डिफाइन नहीं कर रखा, कंपाइलर क्या चाहता है इस केस में? कंपाइलर ये कहेगा कि आप ऐसे फंक्शन को क्या करो, रीडिफाइन करो। रीडिफाइन करो, कहाँ रीडिफाइन करो? या तो डिराइव क्लास में रीडिफाइन करो, या उसको रीडिक्लेयर करो एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर आप यहाँ पे फंक्शन को अगर आप यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन नहीं करते ना बेटे, तो आपको यहाँ पे दोबारा से क्या करना पड़ेगा? उसको रीडिक्लेयर करना पड़ेगा एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय कंपाइलर। इफ यू हैव declared a function as pure virtual function, then compiler wants you to redefine that particular function in some derived class, or you just redeclare it as a pure virtual function in the derived class. Okay? And this is again very important thing. ऐसी कोई भी क्लास जिस, अच्छा एक से ज्यादा भी प्योर वर्चुअल फंक्शन बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके कोड में, आप बेस क्लास में एक ही फंक्शन होगा जो प्योर वर्चुअल फंक्शन हो सकता है। एक से ज्यादा प्योर वर्चुअल फंक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके सिस्टम कोड में कोई भी एक क्लास एग्जिस्ट कर रही है जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन पड़ा है, उस क्लास के आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, वो हमें समझ में भी आता है, मैं बता भी देती हूँ क्यों। बेटे आपने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है, कंपाइलर को ये समझ में आ रहा है कि अच्छा आप अपने कोड में ना कोई ऐसा फंक्शन यूज करने वाले हो, आपने ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया अभी, उसको कोई मेमोरी एड्रेस असाइन नहीं हुआ। मेमोरी एड्रेस इज नॉट असाइंड। एक टेबल होता है, ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बस आपने याद रखना है कि इसको अभी कोई एड्रेस असाइन नहीं हुआ, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, इसको कोई एड्रेस असाइन नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो ऐसा इसके आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते, इसके आप ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा मेंबर फंक्शन नहीं आ पाएगा जिसको कि अभी कोई मेमोरी एड्रेस असाइन नहीं हुआ। ठीक है, तो वो कोई भी क्लास जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, उस क्लास के आप ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते हो। और वो सारी क्लासेस जिनके आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते उनको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ऐसी क्लासेस को आप इनहेरिट करवा सकते हो। ये क्लासेस हम बनाते ही इसलिए हैं इनहेरिटेंस पर्पस के लिए। ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम इनको क्रिएट ही नहीं करते। हम इन क्लासेस को किस लिए क्रिएट करते हैं? क्योंकि हम इनको यूज करना चाहते हैं इनहेरिट करवाने के लिए। भाई जो हम एग्जांपल्स करते हैं ना, वो बहुत स्मॉल एग्जांपल्स होती हैं, स्मॉल एग्जांपल्स होती हैं। एक्चुअल सिनेरियो में जब हमें कोडिंग करनी होती है, वहां पे हमें ऐसी क्लासेस की जरूरत पड़ती है जिनको हम इनहेरिट करवा सके, जिनके ऑब्जेक्ट्स बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप इसकी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और इस एग्जांपल में ये वाली क्लास में क्योंकि आपने वर्चुअल फंक्शन को प्योर बना दिया, तो ये क्लास भी क्या बन गई? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। आप इसका पॉइंटर बना सकते हो, मेन के अंदर आप ये लिख सकते हो, इट इज अलाउड, बट दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो two things you have to learn which are very important. Pure virtual functions, पहली चीज, these are virtual functions. Pure virtual functions have no definitions, okay? They are just declared in base class. And all the classes that contain pure virtual functions are known as abstract classes. Third thing is you cannot create objects of such classes, but you can create pointers. You can create pointers. And what is the syntax? फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम है बेटे विद रिटर्न टाइप, सॉरी फंक्शन का नाम ये है रिटर्न टाइप, इसके आगे वर्चुअल कीवर्ड इज इक्वल टू 0 कोलन, ये सेमी कोलन तो आएगा ही क्योंकि हमने इसको सिर्फ डिक्लेयर करना है। ये इसका सिंटेक्स है।